So I've switched on the recording. So shall we start, ma'am? Is it okay? Yes, ma'am. You can begin. Yeah. Yeah. Karthik, are you ready? Yeah, Hital. Yeah. So hi all. Good afternoon. Wishing you all ladies a very happy Mother's Day. Welcome to this Trisha, the Enlightened Lamb Global Foundation. May I now request the founder, Tesha ma'am, Ms. Rekha ma'am, to do the honors. Thank you, Hital ma'am. Good evening, everyone. First of all, I, as a founder of Tuesha, the Lighted Lamb Global Foundation, would wish all the mothers over here. I think 90% of the people who have joined this show are mothers. So, very happy Mother's Day to everyone present here. I would especially wish Lakshmi ma'am a very happy Mother's Day because taking up as a session was a gift from his like her son Karthik. Fine. Welcome Danya, welcome Karthik sir, welcome Lakshmi ma'am, Hetal ma'am, welcome. And I would like to thank my team, all those who are coming up with a vision to let this program be successful, let this NGO, let this foundation to be at the heights where we actually are wishing to. We wish that you should come up with your vision so that we can help you out to come to implement the programs, because everybody, right, somewhere in their minds have something there to do, something to do for people. As if today Lakshmi ma'am has come up with her own experience to train the people, the minor errors we make while preparing the dosa. Still, I am not an expert in it. Clear, I have been trying. So, hope you get the best out of today's webinar. Before we proceed, I would like you all to just let us know, because we have started with a vision that we can help people. Your vision, our implementation. अगर आपके पास में कोई भी जील है, अगर आप कोई भी प्रोग्राम लेके आना चाहते हैं, तो त्वेषा आपके साथ है. त्वेषा द लाइटेड लैम्प ग्लोबल फाउंडेशन का मेन उद्देश्य है कि जो भी जिस भी फ्रेम में हम एक्सपर्टीज हैं, अगर हमारे पास में कोई स्किल्स हैं तो आप हमारे साथ में शेयर कीजिए, हम लोगों तक पहुंचाएंगे. पार्टिसिपेंट्स नंबर 1 2 10 20 30 हार्डली मैटर्स. ये है कि अगर हम एक को भी ट्रेन कर पाए तो हमारा मिशन सक्सेसफुल होता है. सेकेंड थिंग, 29 to 5th of May हम लोगों ने कुछ प्लानिंग्स की हैं. अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करके अपने विजन को प्रूफ करना चाहता है, अपने विजन को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो यू कैन शेयर विद अस whatever the vision is. We with our team would like to actually bring it into implementation and reach to more and more people. So I welcome once again Karthik ma'am and Lakshmi ma'am, Karthik sir, Danya Roshan and all others from my team. And we would like Hetal ma'am to continue with the session so that we can start up with the session and get the best out of what Lakshmi ma'am has in her treasure today. Over to you, Hetal ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Nice word, nice encouraging words from your side. Thank you so much. So yeah, so generally the cooking is defined as an art of form because it has the ability to create new and simple dishes which enlightens our tummy. Today we have with us Mrs. Lakshmi, currently who is an homemaker and experienced in cooking almost 50 plus years. Mrs. Lakshmi has an opportunity to visit and stay in different parts of the country since her husband was an armed force. Her passion towards cooking and learning and mastering different cuisine has made her to start a small catering business of her own. And she has been judged at several cooking shows. Today, she is going to show the South Indian tiffin combo for us. Now, let us watch the video and recipe of making each video. Over to you, ma'am. Yeah, here I would like to add, after watching the videos, if you feel like there is something missing, then we'll have actually a communication with ma'am Lakshmi so that she can solve our queries कि कहाँ पे हम लोग mistake करते हैं. Because YouTube actually provides us with everything. The videos are already available. Why we came up with this? So that हम लोग देखने के बाद में तुरंत मैम से पूछ सके कि मैम ये चीज मैं जब प्रिपेयर करती हूँ तो मेरी ये चीज कमी रह जाती है. तो वो जो भी हमारे अंदर कमी रहती है उसके लिए मैम लक्ष्मी is going to solve our queries. Yes, ma'am. Can we start? Yeah, Hital, can you allow me to share the screen? It says host disabled participants. Yeah, I will do it. I made you co-host, Karthik. So yes, Yep. you
can? Yeah, I'm getting it. So hope the screen is visible. Yeah. So today she's going to start off with making of the batter. Yeah. How to make the dosa mav. डोसा का आटा कैसे बनाता है? Yeah, I'll just explain this this whole presentation or a content of all videos. This is all the dishes have been made by my mom, Lakshmi, for especially for this program. So all these dishes on Wednesday she made it on the trot all by herself. And this videos will be shared with you. It's like a PPT wherein each menu, if you click, you can view the particular thing. So we'll start. Yeah, Hital, please go on. Yeah, the first one is how to make the dosa mav. So she's given the recipe, the ingredients, and what and all is required. So I hope you are able to view the screen. Yes. There is a reason behind actually making a video beforehand, because when we do it live, some interruptions are there. So that is why it has been pre-prepared for you. And wherever you'll find difficulty, we can actually solve your queries as and when you ask. Although people in Chennai have their own these grinders, but yes, ma'am is of course going to tell us how we can do it in our own mixers, which we have at our home. After making the paste, we have to actually remove it, keep it aside. We know this thing that overnight we are going to keep it so that the batter gets it goes well. Yeah. And we need to add salt when you're starting to make dosa or idli, whatever it's required. You can grind this even in through mixie also. Mixie आपके पास है तो आप mixie में भी grind कर सकते हो. As you can just read it, because after the grinding process, we are actually required to allow it to ferment for 8 hours. After mixing the both the batters, first was the urad dal, wherein we had added this methi seeds, and then the rice. So both have been grinded separately, and then later on it has to be kept for 8 hours for fermentation so that it comes up smooth. I think is the sound visible? Sound audible? Sound is not there. This is why. There's no sound. It is very quiet actually. Oh, yeah. I'm sorry for that. One second. I'll share it again. Just allow me to share it again. Because there are some live sounds which we have tried to capture. Is it audible now? Yeah, now it is audible. Okay, now ghee roast dosa.
dosa. इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल के, धनिया, not pudina. oh sorry, धनिया. You can also put pudina. It's also possible. This is the most trickiest part, to flip it properly without breaking. Yeah. So yummy, no? Hope we have a technology sometime that we can taste the food through online also, right? Just through the net and just eat it off. This is onion uttapam. This is onion uttapam. फिर उसके बाद आता है पोड़ी डोसा. Okay, the small ones you can make. Okay, fine. Just ignore this guy. We couldn't reshoot. This guy just got off shape because the oil got cold. See this guy? This guy looks a little ugly, but just ignore that. What actually we are spreading onto it? Sorry, that's a powder. You call it as a gunpowder in the north and all, I guess. It's a idli powder. You get it in MTR. You get it in a lot of different brands. You can also make it on your own. Okay, we can actually make it at home also. Yeah, it is available. It's very easy to make actually, you know. Okay, it's very easy to make. Yeah, we can share the recipe of this even in the group. Somebody Yeah. was asking for how long. How long can you keep this batter for? This batter, yeah, I'll allow mom to answer. Even all in the batter. Good evening. Good evening, ma'am. Namaste. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Yeah. How long you can keep this ये batter? बैटर तो आप कम से कम फ्रिज में तो 1 हफ्ता तक रख सकते हैं. 1 हफ्ते के लिए. 6 days. ठीक है. और ये पूरी कैसे 1 kg का आटा है, 4 मेंबर्स के लिए 3 बार बन सकता है. हाँ, अच्छी बात है. 1 kg का. And suppose रेफ्रिजरेटर नहीं है, suppose आजकल तो सब घर में होता है, लेकिन अगर नहीं है then without फ्रिज नहीं तो कम कर लेना, 2 ग्लास डाल देना. कितना दिन रख सकते हैं बाहर? कितना दिन बाहर रख सकते हैं? बाहर तो नहीं, खट्टा हो जाएगा. एक दिन इडली डोसा बनाएगा, नेक्स्ट दिन ऑनियन उत्तपम. जब नहीं रहता ना, ऐसे लोग करते थे, हम लोग ऐसे करते थे. दूसरा दिन पोड़ी बन जाता है अपना. पूड़ी एज मैम, वो पोड़ी क्या है? वो पोड़ी कैसे बनाते हैं? बहुत इजी है, आप लोग बना सकते हैं. मिर्च लाल मिर्च और 1 कप उड़द दाल, 1 कप चना दाल, थोड़ी सी हींग, सब फ्राई करना है. तेल डाल के हल्का से फ्राई करके रेडिश बनना है. फिर नमक डाल के पीस सकते हैं. ज्यादा नहीं, पाउडर नहीं बनना है, थोड़ा करकरा होना है, तभी अच्छा लगता है. वो भी स्टोर कर सकते हैं. ये इसका भी हम थोड़ा स्टिल्स या रेसिपी बना के ना ग्रुप में डालेंगे. इस ग्रुप में हम कंटिन्यूअसली आपके जो भी क्वेरी रहेगा ना वो ग्रुप में डाल देंगे. ठीक है. तो ये चना दाल और उड़द दाल को क्या मतलब भिगोने के बाद फ्राई करना है या वैसे ही सूखा ही? हाँ, सूखा 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 ड्राई रहेगा. 1 महीना 2 महीना भी आप रख सकते हैं. बॉटल में डाल के बाहर ही रख सकते हैं, फ्रिज का जरूरत नहीं. we can continue. चाहे तो तिल भी थोड़ा डाल सकते हैं. तिल अगर डालेंगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है, स्मेल बहुत अच्छा आती है. तिल जब फ्राई करते हैं ना दाल वगैरह, उसमें तिल भी थोड़ा डालने से अच्छा लगता है.
कड़ी पत्ता तिल डालेंगे हम लोग इसमें। ओके ओके। सब इकट्ठा फ्राई कर लेना, फिर अच्छे से पीस के रखना नमक डाल के। ओके। उसके बाद आता है इडली, one of the most healthiest diet in steamed idli. We can use the brush as well for like greasing the idli mold. आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे। What did you say, ma'am? I said we can use the brush even to do the हाँ, grease grease part. the हाँ. One second, I'll play the idli again. तो थोड़ा सा तेल इसलिए लगना है, वो लगता नहीं है प्लेट में, आराम से निकल जाएगा इडली। The same batter for all these dishes. Yes. प्लेट में थोड़ा सा तेल लगाएंगे, घी भी लगा सकते हैं। And when mom is taking out, you can see that थोड़े से uneven है। वो uneven ना हो, उसके लिए जस्ट ट्रिक होता है कि हम लोग उसको थोड़ा ठंडा करके निकालेंगे, तो हाँ। वो uneven, उसका जो साइड्स होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं। अगर हम तुरंत निकालते हैं तो आप देख सकेंगे कि ये थोड़ा सा उसके जो साइड्स होंगे दैट वुड बी अनइवन, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा उसको रेस्ट मीन्स ठंडा करके निकालेंगे तो बिल्कुल स्मूथली निकलता है वो। हाँ, टूटेगा नहीं। यस। ये अभी आपने मम्मी को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे वो करते हैं कि गरम गरम ऐसे ही हाथ डाल के निकाल लेते हैं। वो कोशिश मत करना, थोड़ा ठंडा होने के बाद निकालना। वो बोलने से भी सुनते नहीं है, थोड़ा सा रिस्की है, पर उनका क्या है, वो थोड़ा सा पानी डाल के एकदम से निकाल देते हैं। ये थोड़ा ठंडा होने के बाद, जैसे रेखा मैम बता रहे थे, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही आपका ठीक से निकलेगा। ये वो इसलिए दिखाया कि ऐसा अगर आप गर्म में निकालेंगे तो ये ऐसा अनइवन सा रहेगा, इसका जो हाँ। साइड्स शेप में अच्छा आएगा, वो टूट जाता है इडली। जब थोड़ा सा ठंडा करके निकालेंगे तो इसका बड़ा अच्छा सा स्मूथ शेप आता है। तो वो हम्म। दोनों तरीके से रीजन बताने के लिए इसको इस तरीके से निकाला गया है। Vada. This is tricky because even I don't know how to make. I don't know to make. It never comes for me. Fine. So same is with this also. We have to actually soak the urad dal with water, then grind it. We have to add salt according to our taste. Then chili mix means we have to add flakes even. Then let's see how we can just make the vadas. ये ना इजी है, देखने में ऐसे लगता है, आप एक दो बार बना लोगे तो शेप अच्छा से बन जाएगा। इसमें पानी डाल के नहीं पीसना है दाल को, पानी थोड़ा सा खिसकाना है बस। नमक डालने से थोड़ा पानी ढीला हो जाता है आटा। अगर पानी डालोगे तो शेप नहीं बनता है, ज्यादा पानी हो जाता है। As you can see, वो कैसे shape देना, that is main important thing. कि वड़ा को shape कैसे देना। We are actually deep frying this vada after giving the shape and the form. अपनी थोड़ा पानी लगाने से चिपकेगा नहीं, आराम से निकल जाता है। तो ज्यादा देर नहीं छोड़ना है, लाल कलर बनने से निकालना है। एक बार पलट लेना, उसके बाद निकाल दी। एक दो बार कोशिश कीजिए, हो जाएगा। पहले तो नहीं आता, अनशेप हो जाता है।
एक दो बार बनाने से अच्छा से शेप आ जाएगा। पोंगल। इसमें ना राइस और मूंग दाल के साथ बनता राइस है 1 ये। कप है, मूंग दाल 1/2 कप है, घी चाहिए, क्यूमन सीड्स, पेपर, हींग चाहिए, जिंजर थोड़ा सा कूट के रखना है, करी लीफ। अच्छे से गलना है ये राइस को, 4 गुना पानी डाल के कुक करना है, फिर अच्छा से गला के फिर तड़का देना। इजी रेसिपी है। ये हमारा तो ट्रेडिशनल फूड में एक मेन पार्ट है ये तो पोंगल। तो राइस कुक किया हुआ है, उसके ऊपर डाल देना, मिक्स करना है। ये तो छोटे बच्चे के लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है ये तो। हमारे में तो बच्चों के लिए ये बना के ज्यादा देते। केसरी। हाँ केसरी है, ये तो नात में तो सूजी का हलवा बोलते हैं, हमारा में केसरी बोलेंगे। सूजी आधा कप, शुगर 1 कप, इलायची पाउडर, कैश्यू, घी 200 ग्राम या 100 ग्राम भी चलेगा, मिल्क आधा कप। पहले रवा को फ्राई करने का है। एक कप में बनाओगे तो कम से कम 4 मेंबर खा सकते हैं। लेकिन आंटी आप उसमें दूध क्यों डालते हो? पानी डालते हैं ना? पानी दूध में थोड़ा साफ बनता है, टेस्ट ही थोड़ा अच्छा आता है। ओके। पानी भी डालते हैं, दूध हम लोग आधा देते हैं, उसमें से सॉफ्ट बनता है। ठंडा भी हाँ। होगा ना सॉफ्ट ही रहेगा, वो हार्ड नहीं बनता है। हाँ हाँ ठीक है। इसका फ्लेम मीडियम रहेगा भूनते समय। मैम क्या बोल रहे हैं आप? इसका जो फ्लेम है वो भूनते समय मीडियम रहेगा। We are not able to hear you. फ्लेम मीडियम रहेगा। हाँ फ्लेम मीडियम ही रहेगा। फ्लेम मीडियम Medium. रखना है, मीडियम ही रहेगा। कितने मिनट तक भूनना है? वो ज्यादा रखने से जी कितना देर भूनना है? तो 5 मिनट तक आपको देखने में पता चल जाएगा ना, लाल जब तक होना है तब तक। ओके ब्राउनिश होना है, ज्यादा भी ब्राउन नहीं होना है, थोड़ा सा कलर चेंज होना है। ओके। नहीं तो क्या ये अलग अलग रहता है केसरी, नहीं तो क्या चिपकेगा, हलवा जैसा हो जाता है। ओके अच्छे से फ्राई करोगे तो एकदम अलग अलग होगा।
केसर का कलर थोड़ी सी डालना है। आधा घी पहले देना है, आधा घी जब उतारेंगे तो तब देना है आधा घी। The things will be shared in the group also, ma'am. जी It will be shared in the group also. The complete video would be shared. आंटी आप बनाइए। सॉरी, कुछ सवाल था क्या? They wanted to know the batter system, like how is that being mixed? So we said that we will share the link. Yeah, like we how will it has been once shared. the whole thing is over, we will take up the questions and we will take up the video and show again when whatever is the doubt. Sure. सांबार। सांबार के लिए तुअर दाल, इसमें तो मैंने 100 ग्राम तो 100 ग्राम से लिया है तुअर ग्राम, वो तो 6 मेंबर खा सकते हैं। स्मॉल अनियन तो चाहे डाल सकते, नहीं तो बड़ा अनियन भी डाल सकते। टमाटर, ग्रीन चिल्ली 2 पीस। टैमरिंड का वाटर निकाल के रखना है। जब तुअर दाल अलग से कुकर में पकाना है, निकाल के अलग रखना है, उसके बाद तड़का देना है। तड़का में तो हर एक आइटम ये सब बन जाएगा। उसके बाद तो जो तुअर की दाल बना हुआ दाल को डालना है, डाल के सांबार पाउडर डाल के, फिर इमली का पानी जितना चाहिए आप लोगों को उतना आपका पसंद से डाल सकते। ये बेसिकली टिफिन का सांबार है। सांबार बहुत तरह के होते हैं। ये सांबार में 4-5 वैरायटी होती है हमारा। ये ब्रेकफास्ट के लिए ये सांबार बनाते हैं हम। यदि ज्यादा तो हमारा शादी में यही ब्रेकफास्ट देते हैं। तो दाल मैश किया हुआ है। मैंने इसमें छोटा प्याज डाला है, अगर नहीं होते तो बड़ा प्याज भी डाल सकते। हम राइस के लिए तो हर एक सब्जी मिला के भी एक सांबार बनती है। ये तो ब्रेकफास्ट के लिए सांबार है। तो दाल का पानी दाल डालना, अलग से कुकर में पका के रखना है। रेडी रखना।
अगर आप लोग को सांभर पाउडर का रेसिपी चाहिए तो मैं भेज दूँ बना। ये टमाटो चटनी है। टमाटर चटनी। 2 प्याज रखा है, 2 टमाटो है, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची भी 2 रखने से टेस्ट अच्छा आती है। थोड़ा सा इमली और सॉल्ट, 2 पीस लहसुन की 2 पीस। पहले लाल चीनी डालना है, फ्राई करना है। हल्का से फ्राई हो जाएगा तो लहसुन डालना है। जो दाल चटनी की हमारा तो वैरायटी बहुत है, 4-5 आइटम है इसमें भी। प्याज है, एक-एक करके तो फ्राई करना है, सब अच्छे से फ्राई हो जाएगी। चाहिए तो चाहे इसमें नारियल भी डाल सकते हैं, नारियल का एक टुकड़ा भी डाल सकते हैं, अच्छा बनती है। अच्छा फ्राई हो जाएगा तो मिक्सी में डाल के पीसना। और ये तड़का देना है। मैं तो दोनों चटनी के लिए एक ही तड़का था, इसलिए दोनों चटनी के लिए तड़का दे दिया। राई और उड़द की दाल, कड़ी पत्ता डाल के तड़का देना है। राई, उड़द की दाल और कड़ी पत्ता। ये चटनी के लिए तो तड़का ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जलना नहीं, ऐसे ही लाल होने से उतार देंगे।
ये नारियल का चटनी है। ये इसमें तो नारियल हमारे चिकन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चटनी है। नारियल और ये जो बंगाल ग्राम, ग्रीन चिल्ली आपके मर्जी से डाल सकते हैं, थोड़ा सा जिंजर, टमरिन थोड़ा, इमली थोड़ा, साल्ट टेस्ट, सब ग्राइंड करना है। आफ्टर ग्राइंडिंग तो तड़का जो दिया है तो वही बस। ये फ्राई नहीं करना है, ऐसे कच्चा ही फ्राई पीसना है। ये जो टमाटर चटनी है आपको 2-3 दिन खराब नहीं होता है। नारियल का चटनी तो एक दिन में फिनिश करना है, नारियल का चटनी 2 दिन नहीं चलता, एक ही दिन में आएगा। ये जो है चिल्ली चटनी है, इसमें हम लोग ग्रीन चिल्ली भी रख सकते हैं, लाल चिल्ली भी रख सकते हैं। ये खराब नहीं होता, 1 हफ्ता 10 दिन भी फ्रिज में आप स्टोर करोगे, रख सकते, जब मर्जी थोड़ा थोड़ा ले सकते। देखने में ऐसे लगेगा इतना मिर्ची है, लेकिन मिर्च नहीं लगता है। उसके बराबर हम लोग प्याज डालते हैं और लहसुन डालते हैं, थोड़ा इमली और साल्ट, अच्छे से पीस के तड़का दे के रखना। स्टोर करोगे तो 1 हफ्ता भी रख सकते हैं। और इसमें हम लोग तिल्ली का तेल डालते हैं। फिल्टर कॉफी है, कॉफी पाउडर तो हम लोग को मिलता है। नीचे बाउल रहेगा, ऊपर छेद रहेगा, उसमें पाउडर डालने का है। फिर गर्म पानी मिक्स करना है, उसके बाद वो जो टिक्का नीचे आ जाएगा। फिर दूध गर्म करके ये जो टिकाक्शन है दूध अलग से बॉईल करना है, फिर टिकाक्शन डाल। फिर दूध गर्म करके आपको जितना चाहिए, अगर डार्क चाहिए तो थोड़ा टिकाक्शन ज्यादा चाहिए, या लाइट कॉफी आप पियोगे तो दूध ज्यादा डालना है। मिक्स करना है। ये भी तो कप है हमारा, ट्रेडिशनल कप है, हम लोग साउथ इंडियन से पीते हैं ऐसा, इसी में पियेंगे कॉफी। ये फिल्टर जो है ये सबके पास में तो अवेलेबल नहीं होता है, तो उसका क्या ऑप्शन है हमारे पास? ये बहुत सस्ता होता है, अमेजोन में आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है कॉफी पाउडर, कॉफी फिल्टर। हाँ कॉफी फिल्टर के बहुत सस्ता मिलेगा, 100 के अंदर मिलेगा। ये तो चीज सबसे छोटा साइज है, 100 रुपीज, 120 इतना में मिलेगा। बाई चांस नहीं हो तो उसका कोई ऑप्शन होता है? मिल जाता है ये तो हर एक जगह पे ऐसा। तो ये फिल्टर, इसके बिना तो ये काफी अच्छी नहीं बनती है। ओके। फिर हम लोग तो वो फिल्टर, वो कॉफी पीते हैं ना हम लोग, वो अलग है, पाउडर अलग है। पाउडर अलग है, ये पाउडर अलग है। ये तो ना वो काफी सीड्स है ना, उसको फ्राई करके पीस के रखते हैं। ओके। ये भी हम लोग स्टोर करते हैं, ये तो हमारा डेली का ये है, डेली चाहिए। ये तो हमारे में सुबह मॉर्निंग उठ के तो ये कॉफी पीते हैं। ओके। ये फिल्टर तो मिल जाएगा
हर एक, अभी तो अमेजोन में तो हर एक आइटम मिलती है। फिल्टर के बिना तो ये कॉफी टेस्ट नहीं आएगा। Thank you, Manisha ma'am. I'm just asking if there is any option because the purchasing में थोड़ी सी कंजूस हूँ. That's why I asked. Although it is 100, but फिर भी लगता है कि चलो by chance नहीं हो तो इसका option. Anyways, thank you, Manisha ma'am. Yeah. ये जो आइटम है 3 मेंबर्स खा सकते हैं, अकेले नहीं खा सकते हैं। Okay. 3 मेंबर्स के लिए है ये। Fine. Now what next, Karthik sir? प्रेजेंटेशन तो इतना ही है, ये शेयर कर देंगे, इसका हम ड्राइव में अपलोड करके जो हमारा कॉमन ड्राइव है उसमें अपलोड करके शेयर कर देंगे। अभी कोई क्वेश्चन आंसर्स है तो आंसर कर सकते हैं, बाकी तो इतना ही है। वीडियोस तो सारे आइटम्स हम दिखा चुके हैं। ज्वाइनिंग का मेन पर्पस है कि हम लोग को आता तो है इसको बनाना, लेकिन हम कहाँ Okay, I had a query. या Actually, I have the rice rava, the rice suji. Yeah, and when I make idli from the rice suji, it goes very dry. What should be the reason? वो ड्राई इसलिए होता है, वो मशीन में पीसा रहेगा वो तो। रवा इडली चाहिए आपको? रवा इडली का नहीं, रवा the सूजी इडली जो मैं बनाती हूँ वो तो अच्छा बनता है, बट जो राइस का रवा मिलता है, राइस सूजी भी मिलता है ना, में ना आपको उड़द की दाल का पीस के अलग से डालना है। उड़द की दाल तो थोड़ा उसका ज्यादा चाहिए। ओके, और प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए? प्रोपोर्शन क्या है, अगर 2 ग्लास का सूजी रहेगा, 1 ग्लास का उड़द की दाल डालोगे तो सॉफ्ट बनती है। मिक्सी में पीसोगे तो, अगर ग्राइंडर में पीसोगे तो पौने कप में भी बन जाता है। ओके, नहीं ग्राइंडर में थोड़ा आई कम हैव द होता है ना, आटा कम है। I have the wet grinder, but I think it's too difficult. Just थोड़ी सी इडली बनाने के लिए मेरे को like अगर 3 at the ग्लास moment 2 ग्लास भी आप डाल सकते हैं। अगर 2 ग्लास राइस डालोगे तो आधा कप उड़द की दाल डाल सकते हैं आप। ओके, नहीं मेरे पास एक्चुअली रवा है, वही मैं फिनिश करना चाह रही हूँ, बट मेरी इडली इतनी ड्राई होती है, लाइक मुझे अच्छा, आप कोई नहीं उड़द अच्छी की दाल लगती। का आटा कैसे पीसते हैं? नहीं, उड़द की दाल का आटा नहीं यूज करती हूँ, फिर मैं उड़द दाल भिगोती हूँ। उड़द दाल राइस, भिगो के पीस के उसमें मिक्स करना। आप मिक्सी में पीस गए, ओके, मानो जैसे मुझे करना मॉर्निंग है में थोड़ा बनाना अच्छी है तो तरह 6 to 7 आवर्स है ना, उसको छोड़ना है बाहर। ओके, मानो मुझे मॉर्निंग में बनाना है तो अभी मॉर्निंग में मैं अगर उड़द की बनाना है दाल, तो रात को आप मिक्स करके रख दीजिए। ओके, रात को 8 तो अभी मैं 8 to सोच 9 करूंगी आवर्स तो रात 9 को to भी 10 बना को तो सकती हूँ। मिक्स करके रखोगे आप, मॉर्निंग आराम से बन सकता है। इतना अच्छा सा फूलेगा आपका आटा, अच्छा ओके बनेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक कंसिस्टेंसी मुझे लग रहा है मैं ज्यादा टाइट रखती हूँ पीसते नहीं, समय, हो मिक्स सकता करके है आप इसलिए। देखिए, जैसा अभी इडली का आटा बैटर देखा ना आपने, ऐसे रखना है हाँ, आटा। ओके, ज्यादा ढीला थैंक यू, ढीला होने से भी तो बनता है इडली। ओके, उड़द थैंक यू। एक्चुअली ना वो सॉफ्टनेस उड़द से आता है। आप खाली राइस का क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा तो ड्राई हो जाएगा। और मेथी दाना बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। मेथी का दाना भी बहुत वही एक टिप है उसका। कलर भी, डोसा का कलर भी बनती है, इडली का भी, तो टेस्ट अच्छी आती है, सॉफ्ट होता है। ओके 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 ओके, ये सारी थैंक रेसिपी यू। हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। सो क्योंकि रिकैप दिखाना इट वुड बी लाइक फॉर एवरीबडी इफ वी विल, सो एवरीबडी एक्चुअली ज्वाइनिंग द वीडियो, हम लोग पूरी रेसिपीज को ग्रुप में शेयर करेंगे। आप अभी क्वेरी, क्योंकि आप लोग सब बनाते हैं इस चीज को घर पे, मैं भी ट्राई करती हूँ तो मेरी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है। लाइक एक डोसा के लिए जो मुझे टिप मैम ने दिया था, ठंडे तवे पे भी हम लोग बैटर को बहुत पतला करके, जब हम ठंडे तवे पे हल्का सा ग्रीसिंग करके, हमारा नॉन स्टिक होता है, हमारे एक्चुअली मैम के पास तो बहुत थिक वाला तवा है तो उस पे तो इजीली हट जाता है, बट हमारे पास में अगर नॉन स्टिक तवा यूज करना है तो उसके लिए हम लोग ग्रीसिंग करके थोड़ा सा ऑयल, बहुत बहुत मिनिमम, बिल्कुल कि मान लीजिए 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप्स, उसको ग्रीस करके ठंडे तवे पे जब बैटर को पतला पतला स्प्रेड करते हैं ना, तो भी हमारा पेपर डोसा का जैसा वो बहुत पतला सा जो डोसा होता है क्रिस्पी,
इवन अभी मेरी डॉटर शी इज इन 10th स्टैंडर्ड, उसने ये ट्रिक जब करा तो शी इज एबल टू एक्चुअली मेक इट वेरी नाइसली। तो वो ठंडे पे रख के उसके बाद हम लोग उसको गैस पे रखेंगे, ग्रीसिंग करने के बाद में ठंडे पे बैटर पतला होता है तो उसका अच्छा होता है, और वो एक दो बार बनाने से समझ में आ जाएगा कि कितना पतला। लाइक सपोज कि हम सूप का कंसिस्टेंसी रखते हैं, उस सूप की कंसिस्टेंसी फॉलो करते हुए उतना पतला जब हम रखेंगे देन इट गोज वेरी नाइस, बिल्कुल स्टिक भी नहीं होता है और हमारा क्रिस्पी भी बनता है। हाँ, डोसा की आटा तो पतला से चलता है, इडली का आटा थोड़ा ये होना चाहिए। थोड़ा सा हार्ड, हाँ डोसे की बात करें क्योंकि मेन डोसे का टेंशन सबसे हाँ। ज्यादा वो क्रिस्पी क्यों नहीं होता। जितना पतला होगा ना वो जो नॉनस्टिक तवा में तो निकल जाता है, अच्छा से आएगा। या और एक तो हम लोग रवा डोसा भी बनाते हैं, इंस्टेंट हम बना सकते हैं। रवा 1 कप दही कर्ड डालना है, कर्ड डाल के उसमें तड़का देना है, प्याज, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता सब डाल के उसका डोसा बनाओगे तो बहुत बढ़िया बनेगा डोसा, इतना क्रिस्पी डोसा बनता है आपको। जो उसी उसमें टाइप इनो बनाना। डालने की जरूरत है? हाँ? इंस्टेंट डोसा बनाएंगे इनो कुछ नहीं चाहिए, दही दही डालते हैं ना हम लोग। ओके। हाँ, 1 कप रवा होगा तो 1 एक कप दही डालिए, हम्म और ये जो तड़का हम देते हैं ना, राई और उड़द की दाल का तड़का देके, प्याज थोड़ा ज्यादा डालने का है, वो भी थोड़ा हल्का से फ्राई करके उसका आटा में डाल दीजिए। फिर उसका ओके। डोसा बना के जितना पतला भी बनेगा ना उतना अच्छा डोसा क्रिस्पी आएगा उसमें। वालिन तवा डोसा बोलते हैं ना, होटल में तो ऐसे देते हैं। जब चाहिए तो सुबह मॉर्निंग आपको चाहिए तो मॉर्निंग आप प्रिपेयर करके उसी टाइम बना सकते हैं। ओके, दही की जगह जो मट्ठा आता है, लाइक क्या कहते हैं, छाछ यूज कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, दही ज्यादा दही चाहिए। Hello, ma'am. I have a query. For dosa, we have to use idli rice only. We can't we use boiled rice or some other rice? हाँ, बॉइल्ड राइस से अच्छा बनता है। अगर जिधर बॉइल्ड राइस नहीं मिलती है, हम भी दिल्ली में थे तभी बॉइल्ड राइस नहीं मिलता था, हम लोग क्या करते, कच्चा चावल डालेंगे, उसमें क्या करेंगे, 1 कप है ना वो जो बना हुआ राइस है ना, हम लोग जो डेली राइस बनाते हैं, वो राइस 1 कप डालेंगे उसमें, वो राइस में, तो जो कच्चा राइस में बना हुआ राइस को भी भिगो के पीसोगे, उसी में इकट्ठा डाल सकते हैं। 2 ग्लास अगर राइस बन गया, आधा कप बना हुआ राइस डाल दीजिए, और आधा कप है ना उड़द की दाल, थोड़ा मेथी का दाना, वो सब मिक्स करके पीस के रख दीजिए। कम से कम 8 घंटा तो उसको रहना है, तभी तो वो अच्छा बनता है। बॉइल्ड राइस की जरूरत नहीं है। राइस रवा भी साथ में ही सोक करते हैं? लाइक अभी अगर जैसे मैं उड़द की दाल भी सोक कर रही हूँ तो अलग बर्तन में राइस रवा भी अभी सोक कर दूं? नहीं नहीं, एक ही बर्तन में जैसा रवा डालोगे ना, राइस का रवा, और ये जो उड़द की दाल की आटा है वो डाल के, नमक डाल के अच्छा से आटा नहीं डाल रही हूँ मैं एक्चुअली, रात को रहेगा तो मॉर्निंग आपको अच्छा आटा बन जाता है। नहीं, लाइक मैं अभी आटा नहीं कर रही हूँ, मैं उड़द की दाल ही सोक कर रही हूँ। उड़द की दाल तो आप पीस के डालते हैं ना? हाँ, तो जैसे अभी मैं सोक कर रही हूँ तो राइस रवा भी साथ में ही सोक करूँ या नहीं सोक करूँ? अलग अलग। हाँ, अलग अलग सोक कर दूं ना? हाँ, सोक कर। और फिर रात को दोनों को मिला दूंगी मिक्सी में? हाँ, मिला के रख दीजिए, नमक डाल के रख देना बस। पीसने के बाद। थैंक यू सो मच। फिर सुबह आप बना लोगे, इतना घंटा तो चाहिए आपको, सब हाँ, अच्छी लाइक अभी मैं कर देती हूँ तो आई थिंक 4 घंटे में तो आराम से मिल जाएगा। 6 o'clock हुआ है, 10 o'clock तक मैं पीस दूंगी। मैं 5 o'clock बनाती हूँ। हाँ, बना सकते हैं। हाँ, 7 hours हो जाएंगे जी, 7 hours हो जाएंगे आराम से, अगर मैं 10 o'clock भी पीसती हूँ। हाँ, पीसोगी तो मॉर्निंग आपको अच्छा इडली डोसा बन जाता है उसमें। थैंक यू मैम। मिनिमम ऑफ 7 to 8 hours चाहिए होते हैं, तो 7 7 to 8 hours चाहिए वो फूलने का।
वो समर्स में इस मौसम में तो बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, फूलेगा नहीं ना, जितना आटा फूलता है तभी अच्छा बनता है। रेखा जी, somebody was asking, एकदम जल्दी से एक मिनट में सब कुछ एकदम फास्ट दिखा सकते हैं क्या? अभी भी उनका वो क्वेरी है तो ऐसे प्ले करने का जरूरत है क्या? सुमी मैम इज सेइंग आई सपोज हम लोग वीडियो को एक्चुअली ग्रुप में शेयर कर देंगे ना, तो मैम अपने ईज के हिसाब से देख लेंगे, क्योंकि अभी प्ले भी करेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे ख्याल से, वो एक मिनट में तो वो उसको है ना, वो मतलब उसका कोई वो नहीं रहेगा, वैल्यू नहीं रहेगा ना। तो हम लोग इसको अभी शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर, ये वाला पूरा जो वीडियो हमारा प्रिपेयर्ड है। ओके मैम, क्योंकि आपको एक्चुअली वो एक मिनट में वो जितना जल्दी चलेगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इससे बेटर है कि अपन के अंदर मान लीजिए आप कुछ प्रिपेयर करते हो, मैम से अपन पूछेंगे ना तो वो आपकी तुरंत अभी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल। कि मान लीजिए मैं बनाती हूँ तो मुझे क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं मेरी चीज सही हो रही है। काफी बार हम लोग ये सोचते हैं तो वो क्या चीज है जो दिक्कत कर रही है। जैसे अब नारियल की चटनी है, नारियल की चटनी कई लोग दही में पीसते हैं, कई लोग दूध में पीसते हैं, तो कौन सी बेटर होती है, किस चीज में बेटर पीसना चाहिए? कौन सा? और एक बार बोलिए। नारियल की जो चटनी होती है ना, हाँ, वो दही में पीसना चाहिए या वाटर के साथ या मिल्क के साथ, कैसे वाटर वो के साथ ही पीसना है। अच्छा ओके, क्योंकि हमने कहीं देखा है कि मिल्क नहीं, ना मिल्क नहीं चाहिए, वाटर 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 के साथ ही पीसना है। आपका म्यूट हो गया रेखा जी। या वो somebody actually someone called that, so am I audible? Yeah. Yeah, someone called, so I So declined it. Okay. what I do is I grind all the dry ingredients, like wet, चाहे fresh coconut और green chili, ये Bengal gram, ये सब पीस करके मैं freezer में रख देती हूँ। और जब भी मुझे मानो now suddenly I decided I want to make the idli tomorrow, so I take out the chutney in the morning, उसी में थोड़ा सा दही या पानी जो भी मिलाना है और वो छौंक लगा करके and the chutney will be ready for me. हाँ, वैसे भी बन सकता है, लेकिन नारियल है ना, ज्यादा देर रखना चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग रात को नहीं बना के नहीं रखते, जब चाहिए फ्रीजर में नारियल है जल्दी खराब होता है। फ्रीजर अगर फ्रीजर में रखोगे तो अच्छा है। हाँ, फ्रीजर कंपार्टमेंट में नहीं खराब होता है। बनाते हो, गर्म पानी थोड़ा डालने से भी चलेगा। हाँ, डीफ्रोस्ट हो जाता है मॉर्निंग में, जैसे एक तरफ इडली बनाती हूँ, एक तरफ उसको डीफ्रोस्ट कर देती हूँ तो अच्छे से हो जाता है। तो चलता है। अच्छा, एक सवाल है, हम जो डोसा बनाते हैं उसमें साउथ इंडियन टेस्ट नहीं आता है, क्यों? आई थिंक मेथी। वो मेथी नहीं डालते होंगे आप लोग। मेथी उड़द, मेथी और उड़द की दाल बराबर है होना चाहिए। जैसा अभी बॉइल्ड राइस नहीं होने से वो जो बना हुआ राइस थोड़ा डाल के बना लीजिए, बहुत अच्छे बनती है, क्रिस्पी डोसा बनती है। ये तो सफेद। हाँ, इसलिए सफेद बनता है। अगर मेथी दाना डालोगे तो एकदम कलर आएगा डोसा। तो मैम ये जो आप बोल रहे हैं बॉइल्ड राइस जो आप बोल रहे हैं, तो बॉइल्ड हाँ। राइस यानी जो हम लोग बनाते हैं रात को खाते समय जो राइस हम यूज करते हैं वो वाला राइस? नहीं, राइस में ना दो तरह के राइस होते हैं। आप कच्चा राइस जो भी लेते हैं ना, दो राइस होते हैं जो प्री प्रोसेस्ड रहते हैं ना, एक कच्चा राइस रहता है, एक बॉइल्ड राइस बोलते हैं, जो दुकान में ही बॉइल्ड करके इडली मिलता के है। लिए तो इडली डोसा के लिए बॉइल्ड राइस ही मांगने से मिलेगा। अच्छा ओके, वो क्योंकि कच्चा ही रहता है, उसको बॉइल्ड, वो प्री हाँ, प्रोसेसिंग कुछ होता है उसमें कुछ स्टीमिंग करते हैं। सूखा ही रहेगा वो, तो वो भी ड्राई रहेगा मोटा और ट्रांसपेरेंट होता है जी। थोड़ा सा मोटा और ट्रांसपेरेंट सा होता है पार बॉइल्ड राइस जो मिलता है। और कौन रहा? हाँ, या मोटा रहता है। ओके। और कुछ मतलब कुछ और पहचान उस राइस की मान लीजिए, क्योंकि मैंने तो हम लोग के तो अलग अलग नाम होते हैं वहां पे राइस के, सेला राइस, ये राइस, वो राइस, तो बॉइल्ड इडली राइस आप बोलने से तो अमेज़न में भी मिल जाता है आप लोग को। अच्छा, इडली राइस अलग से मिलती है। रेखा मैम, ये सेला राइस इज बॉइल्ड राइस। अच्छा ओके ओके। बॉइल्ड राइस, इडली राइस मांगने से इडली राइस तो एक ही होती है। बॉइल्ड राइस में तो हर एक आइटम होती है। हम लोग जो खाते हैं उसको, हम तो बॉइल्ड राइस ही खाने वाले हैं, हम कच्चा राइस नहीं खाते हैं। जिस कोई भी दुकान में है ना आपका, या तो एक साउथ इंडियन दुकान, किराने का दुकान रहेगा, नहीं तो केरला का होगा, दोनों में आप इडली का राइस पूछिए वो राइस मांगने से वो दे देंगे। आजकल तो कहीं भी मिलती है इडली का राइस। नहीं, वो नॉर्थ में इसको सेला चावल ही बोलते हैं, वही बॉइल्ड राइस है। जो सेला चावल बोलते हैं वही बॉइल्ड राइस होता है। हाँ,
ओके, सेला चावल, हाँ सेला चावल तो सुना है मैंने। बॉइल्ड राइस, मैं तो सोची थी बॉइल्ड राइस का मतलब जो राइस हम खाते हैं बॉइल करके रखे हुए होते हैं ना, वो नहीं राइस। नहीं 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 नहीं, वो तो बना हुआ राइस आप बोलते हैं, जो बॉईल करके रखते हैं ना। मैं क्या बोला है आपको, जो कच्चा राइस है उसमें बॉईल हुआ राइस डालने से ही डोसा अच्छा बनता है, चलिए, now पीसने से। got it. अगर इडली राइस जिधर नहीं मिलता है वो बना हुआ राइस डाल सकते अगर इडली राइस नहीं मिलता है, मम्मी नहीं क्या मिलता बोलते हैं, अगर इडली राइस नहीं मिलता है तो जहाँ पे आप कच्चा राइस यूज कर रहे हैं, रॉ राइस जो नॉर्मल राइस यूज कर रहे हैं, तब आप खाना जो बना हुआ राइस को आप मिक्स कर सकते हैं, हैं उसमें डाल के सॉफ्टनेस आप के लिए। पीसोगे डोसा अच्छा बनती ओके, है। like I'm from आजकल Uttarakhand तो कहीं and भी है, कहीं भी बॉइल्ड राइस बनती है। इडली राइस that मतलब Sela इडली chawal राइस। is boiled rice only. I use Sela chawal. ओके, एनीबडी एल्स हु हैज एनी क्वेरीज? किसी और को कुछ पूछना है? If not, then Danya, we can conclude the session. Okay, so ma'am, am I audible? Yes. So greetings to everyone. This is Danya Roshan Sayed. I am the youth president of Tuesha the Lighted Lamp Global Foundation and wish you all a very happy Mother's Day. I would like to give my heartfelt thanks to ma'am Lakshmi ma'am for actually coming here and taking out time and actually creating all those videos, lovely, delicious food for us and helping with our queries. Thank you, Karthik sir. Thank you, Hetal ma'am, for organizing this and conducting this. Last not the least, thank you, Rekha ma'am, for the opportunity you have given to all of us to be present here and to celebrate Mother's Day with such a delightful activity. Thank you to all the participants who have joined across the country for joining us and hope to see you all soon very in other functions and other events. Do subscribe to our, do follow us on Instagram and Facebook and stay connected for the upcoming events. Thank you. And over to you, Rekha, if anything else. Thank you, Lakshmi ma'am. Thank you so much, It's great ma'am. hearing you. Fine. And Karthik sir, thank you so much. Actually, you have actually taken the initiative to bring to us such a wonderful cook. Fine. And the methods ma'am was using, although I was a bit confused also, थोड़ा सा क्योंकि मैं इतनी अच्छी वाली expert नहीं हूँ, but still when I'll try following these things in my daily routine, so maybe I'll make my daughter happy. So it was a Mother's Day gift for me also. लक्ष्मी मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छे से सिखाया हमको। और ऑल्दो वीडियोस क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए, अगर हम इसको अभी लाइव करते तो इतनी सारी नहीं देख पाते हम लोग। अभी हम इसकी सारी वीडियोस जो है उसको ग्रुप में शेयर करेंगे, फीडबैक फॉर्म भी शेयर करेंगे। आप फीडबैक फॉर्म को फिल कीजिए, जो भी आपको करेक्शंस करने हैं यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं एक बार फिर कहूंगी, अगर आपके पास में कोई भी स्किल है, कोई भी एक्सपर्टीज है और आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं और लोगों को अपनी एक्सपर्टीज शेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज ज्वाइन आवर टीम सो दैट हम लोग लोगों तक रीच कर सकें और लोगों को स्किल एनहांस करके उनको हो सकता है हम कुछ रोजगार भी प्रोवाइड कर सकें। तो आप सभी वी विश दैट यू शुड ज्वाइन अस एंड वी कुड ब्रिंग फॉरवर्ड मेनी ऑफ द प्रोग्राम्स इन फ्यूचर। जो भी आपके पास ऐसा नहीं है, कुकिंग हो, whatever the skills you have, जो भी छोटी बड़ी whatever you think कि मेरे अंदर ये स्किल है, तो आपका विजन है, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी अभी शुरुआत है, काफी समय नहीं हुआ है, बट यस, जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं बहुत अच्छे जुड़ रहे हैं। वी हैव अ गुड ह्यूज टीम एंड थैंक यू टीम मेंबर्स फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग अस सपोर्ट एवरी टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू कार्तिक सर। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। Thank you Hetal ma'am. Thank you Lakshmi ma'am. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, Danya. Thank you. That was a good vote of thanks. Thank you. Can we Thank you, turn on the video for a while and give a cheers for Lakshmi ma'am because she has taken out the time for us. Everyone, please can we have a photograph click? Yeah, everybody. Just if you liked her, the way she was talking to us, if you can actually appreciate the effort she had done, we Great, can ma'am. up and we can have a photograph. Oh, on a lighter note, my wife was just putting us in a group message. We have a group for our family. She was writing that all these tips your mom has not shared with me earlier. Now she's giving all these tips to all. Thank you, Manisha, so much.
thanks for all. Thanks on behalf of my mom. I thank all of you for encouraging and participating. We can keep this group active. You can ask her. She's in social media for more time than all of us. She uses all Facebook, Insta, everything, and WhatsApp. She keeps continuing. So whatever query you have, you will get the response within 2 minutes. So don't worry about that. That's very sweet Thank of you, her, everyone. actually. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, everyone, for joining us. Thank you, ma'am. Bye. Ma'am.